Great. We are live on YouTube as well. For YouTube audience, pardon me, for YouTube audience, I welcome both our mentors, Mr. Anshul and Ronak. Anshul, I'll give you the floor for an initial brief of how to tell our audience of how your journey has been after graduation, after becoming a CA until now, right? How has it been? Okay, so thank you, Umang, thank you, Shivam, and thank you to all the participants over here, and thank you to my co-speaker, co-mentor, Mr. Ronak Khanna from KPMG. So I am very highly privileged to see such a large crowd, 54 members, 54 participants, and if we exclude our three of ourselves, then 51 is a good number, good lucky number in terms of numerology also. And uh, good morning, good evening, and good afternoon to each and every one of you. So I first of all I would like to wish you all the best for the upcoming CA final results or maybe CA final examinations. So hope to see you in some placement kind of programs in the next month, maybe in ICI campus or maybe in CA Monk campus or any portal campus. So I would like to give a brief about our firm. So our firm, as already introduced by Umang ji, so we are quite actively hiring in the market, and nothing much to introduce about our firm now. So let's go to the topic which you are quite eagerly waiting for to listen, like how to get into the audit profile. And So before Anshul, that, what we'll do, I'll take specific questions. I've prepared an agenda, but initially, okay. why don't you brief us about your journey? How has it been from after becoming a CA? Okay, so I cleared my class 12 examinations in 2012. So I was not aware about chartered accountancy course, but I had a good fantasy that should be a chartered accountant because I had seen one brother in my village hometown. So he was the only CA in our region, and I'm not from India also. I'm from somewhere in Nepal. So I had a fantasy to be a chartered accountant because the word chartered is very heavy because you know the chartered flights. Similarly, the word chartered accountant. So I don't especially use the word CA. I use always chartered accountant. अब CA monk बोलना पड़ता है. That is a different thing, you know. So uh, I cleared 2012. Then I joined CPT. I was not aware कि जून दिसंबर हम लोग डीजे डीजे करते रहते हैं CA में भी. So I was not aware about June terms. So I joined CA in 2012 August. It was 16th of August that I visited ICI Calcutta, Russell Street. I visited as an innocent student at point of time, and now I visit that institute as a faculty, visiting faculty. So it's 10 years of time, and within 10 years of time, yes, I visited multiple times as a student and multiple times as faculty as well. So now I cleared my CPT, and after that I cleared my IPCC both groups. Then I joined VCG and Associates as an article assistant in 2014, mid 2014. That was somewhere around August, 26th of August 2014. So I completed my articleship in August 2017, and I cleared in May 2017 both groups. Then I had some curiosity, or I had some interest to join the CA placement programs, but my partners had already mentioned me that you can join the placement programs. Maybe you join as an interviewer also, but we are not letting you to sign any offer letters. So you just go and experience like how it works the other side. So I had to go to placement program. I went there as an interviewer as well as interviewee. So I was in Calcutta when I was interviewing my own fellow colleagues who passed with my passed in the same time, and I was in Bangalore the other next week going for interviews. So before going for interview, I started my journey taking interviews rather to say. So audit is the core area of our firm, and as an article assistant, I was also quite trained in the audit division audit vertical of our firm. So I did a lot of not a lot of but a few audits and during my articleship period, like some mini Ratna PSUs and some technology incubators and some Section 8 companies and some restaurants
and I got the opportunity to travel 15 states in India for audit assignments. So every time I had a backpack packed with me with two, three shirts or pens so that I could fly anywhere during my audit, during articleship period. So I had always a love for traveling, and I never said no to any traveling assignments and all. So I always used to travel here and there, sometimes for PSU audit, sometimes for Section 8 companies, sometimes for trading industries, and so 15 states I traveled during my 3 years of articleship, and it was totally basically on audit profile only. And I did a lot of, and apart from that, I did a few assessment assignments and few appeal related assignments. And since we are a mediocre firm, and mediocre firm doesn't have any monotone kind of thing, so only not only audit, I worked in service tax, and I worked in income tax appeals and assessments as well. So I have some my colleagues, my fellow colleagues who have joined now, though they have already qualified. So, and then he started in 2017 September as a post qualified chartered accountant. So since then, I am doing audits, but I am not doing field visits and also I directly review at presentation level and disclosure level, and maybe at times at trial balance, and I put circle on some lasers where I ask our other CAs or our young article students or young bright minds to dig into those entries and to dig into those accounts and figure out something. So, as we all know, Schedule 3, CARO 2020 has been amended last year. CARO 2020 got introduced. So, before that, also, we had a lot of amendments, a lot of presentation related things to be taken care of. So, and of late, we received notices from ROC, MCA, SEBI, NAFRA that this presentation has not been complied with and all. So, if you are willing to go to audit profile, then that is an important thing. So I have always focused on the presentation disclosure part, maybe presentation from Schedule 3 point of view, maybe presentation from Ind-AS point of view, or maybe from guidance note. So guidance note are also very important. Guidance note gives a good exposure and gives a good understanding. So now talking about myself, I have done audits in oil and gas industry, post qualification, mining industry, trading industry, pharmaceutical industry, aviation industry, and one or two more to say, like real estate, EPC, NBFC. So these are the few sectors which I have audited. So I think my co-mentor Ronak would be talking on audit sector specific, but I'm not from a big four, so I would not be specifically talking on sector specific, but some audit related assignments. And apart from statutory audit, I have also been engaged in forensic audits and transactional audits and some investigation audits allotted by our regulatory agencies. And I also got opportunity to work with Big Four, one of the Big Four's as joint auditors. So I was leading that team. So I have a bit of flavor from Big Four. So I understand what are the difficulties getting into Big Four and how long hours are spent in Big Four. I have got some ends on that also. So I think we have already taken more than I think 4 or 5 minutes in doing that also. So I've got some queries. I think we would take it that accordingly while we go across. So Umang, would you like to tell me something more, or if I have diverted somewhere, then you please tell me, because as an auditors we always check 360 degree, and क्या होता है कि कभी भी एक दिमाग में एक चीज में फोकस नहीं कर सकते हम लोग. अगर सपोज डेबिट भी चेक कर रहे हैं तो इनकम चेक कर रहे हैं तो साथ साथ में ट्रेड रिसीवेबल्स भी चेक कर लेते हैं, और एक्सपेंसेस चेक कर रहे हैं तो प्रोविजंस भी चेक कर लेते हैं ना, और कंटिजेंट जीएसटी भी कर लेते हैं. जीएसटी भी कर लेते हैं. तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हमेशा होता है. नहीं, wonderful, thanks for the intro. So to say, Anshul is not just मतलब statutory audit का तो knowledge है, but he is also a CA generalist, if I can say that. I don't know if there is a word like that. Right, sir. Great. So Ronak, over to you. Can you briefly tell us how your journey has been after becoming a CA? Okay, sir. So thank you so much, sir, for giving me this opportunity. It seems like yesterday I am
sitting on the other side, listening about the mentors, what we have to do. Thank you so much. A brief about myself. I cleared my CA exams in November 2020. I cleared it in the first attempt. Then after I joined KPMG. There I had the experience of auditing some of the IT giants and the FMCG companies. Uh, take, Taking a step back, during articleship, I did my articleship from a mid-sized firm from Bhilai. Bhilai is famous for one of the steel plants of Steel Authority of India Limited. So yes, sir, that's a brief about me. Thank you, Anshul. We have it's a very great pleasure sharing a stage with you, having such long and diverse experience in audit. Thank you so much, sir. Great, yeah. Thanks to both of you. Let us have a quick round of applause in the chat for both of these mentors here. Let us welcome them with something in the chat, right? So thanks a lot. In this session, right? In the session about how to get a job into statutory audit, right? What this session will cover is, by the end of this session, you will have a clear picture of a roadmap, right? A roadmap for yourself on how to get into statutory audit. What are the skill sets required? What are the kind of resources that you need to refer to? And in the upcoming days, right, 30, 35, 40 days that are left before result, how you can polish yourself to become a suitable candidate for a company in statutory audit. So we will be covering this in the next 40-45 minutes, right? So at the very outset, let me ask, what is statutory audit, right? To both of you, starting Ronak, what is statutory audit? क्या है एकदम simple terms में what is statutory audit? तो सर मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट बेसिकली एक डॉक्टर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. तो सबसे ज्यादा जिसको नॉलेज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर. Being a statutory auditor, we have the responsibility to ensure that the financial statements are reliable and relevant. They are free from misstatements. So yes, ये हमारा मोनोपोली है, हमारा कोर एरिया है. As per Companies Act, only CAs can do statutory audit. So this is all about. Okay, great. And what would have happened had there been no statutory audit domain or statutory audit? अगर statutory auditors नहीं होते तो क्या होता? सर स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर नहीं होता हमारी, तो मतलब क्या बोल सकते हैं, रोटी मतलब दाल रोटी ही स्टैट्यूटरी ऑडिट है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की. नहीं, not from the perspective of career objective, but in terms of company health and overall regulatory scheme. Yeah, right. Okay, so sir, what I feel is that सबसे पहले तो है कि how will the users actually evaluate the performance of the company and its management. अगर एक कंपनी है, सपोज हम मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनते हैं कि we will grow like 20% in the next 5 years, CAGR 20%. So how we will evaluate? ये एक ऑडिट एक्चुअली एक एश्योरेंस फंक्शन है जो आपको ये दिखाता है कि कौन से एरियाज पे देयर इज अ प्रॉब्लम, कौन सी एरियाज में हमें स्पेसिफिकली एक अटेंशन करना है यूजर्स का, और कौन से एरियाज पे हम एश्योरेंस दे सकते हैं कि ये नंबर जो आ रहा है वो सही आ रहा है. तो दिस इज बेसिकली अ स्टैट्यूटरी ऑडिट. मतलब डाइवर्स यूजर्स है फाइनेंशियल ऑडिट के. लाइक अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, वेदर टैक्स इज करेक्टली पेड और नॉट, ये तभी पता चल सकता है कि अगर आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें, टैक्स ऑडिट करें, राइट सर? तो दिस इज ऑल अबाउट. Okay, great. Anshul, anything that you want to add? See, ये तो फिर कंपटीशन जैसा हो जाएगा. नहीं, just in case you have any additional points that you want to put forward. See, I just want to say one thing. Like, if you are going for interview and अगर कोई पूछता है स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, so आप ये चीज जरूर मेंशन कीजिए कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर only give a reasonable assurance. ठीक है, we cannot give a guarantee. So reasonable assurance is a high level of assurance, but not a guarantee that an audit conducted in accordance with auditing standards would always prevent frauds or errors or identify frauds and errors. So आप लोग ये जरूर लाइन जरूर बोलिएगा इंटरव्यू में, है ना. So थोड़ा सा इसको अपना वॉल में भी थोड़ा सा लिख के रख सकते हैं.
So high level of assurance होता है, but not a guarantee. See, नाफरा और ICI और अभी SEBI और MCI इनकम टैक्स सब कुछ भी होने से, you got the news, I think CBI ने ऑडिटर्स सॉरी DHFL का डायरेक्टर्स को कल बुक किया है सम फ्रॉड केस. सो उसका जो ऑडिटर्स था वो ऑडिटर्स का भी नाम आने लग गया. सो ऐसा नहीं हो कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि हम लोग का जो ऑडिट फॉर्म्स है कल का दिन में हेडलाइन न्यूज में आए, हम लोग का गोइंग कंसर्न ट्रैवल में जाए. सो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए और हम लोग का ऑडिट रिपोर्ट्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए. एंड द लाइन विच आई सेड दैट इज आल्सो सेड फ्रॉम एन ऑडिट रिपोर्ट ओनली. सो ऑडिट डजंट गिव अ गारंटी एंड इट्स ओनली हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. सो ये चीज थोड़ा सा आप लोग अपने इंटरव्यू में बोल सकते हो. Got it. Got it. Great. So if to take this forward, if I were to ask you what is a day like in the life of an auditor, a fresher auditor, भाई जॉब लगी है, जॉब लगने के बाद ज्वाइनिंग हो गई है, what is a life like? क्या करते हैं initial 3-4 months, 5 months, 1 year? What is the work like, Anshul? See, it depends where you join. Okay. If you join other than Big Four, then आप लोग को हो सकता है कि आप लोग आर्टिकलशिप में जो सीख के आया हो उसको प्रैक्टिकली या इन डेज में जो सीख के आया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर में या पेपर नंबर 3 ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, सो वो सब आपको अप्लाई करने को मिलेगा. एंड अगर इफ आर्टिकलशिप पीरियड हैज बीन वेरी ग्रेट देन आपको मजा आएगा इफ यू गो टू स्टैट्यूटरी ऑडिट. बट जिसको थोड़ा सा पैसेंस नहीं है, आई वुड रिकमेंड नॉट टू गो टू स्टैट्यूटरी ऑडिट. बट अगर किसी को पैसेंस है और अगर अपना फाउंडेशन ग्रेड करना है और 50 years इस प्रोफेशन में सस्टेन करना है, देन यू शुड स्टार्ट विथ स्टैट्यूटरी ऑडिट. बिकॉज लाइक व्हाट आई डिड वाज इन द लास्ट 5 or 6 years आई गॉट अ good experience, maybe not rich or but a medium level of experience of 8-10 industries, है ना. So I now am by down the line 6 of years line, now I am able to know कि how business works. और अगर आज का दिन में ठीक है मैंने IT इंडस्ट्री में ज़्यादा कुछ किया नहीं, जैसे रौनक भाई ने IT इंडस्ट्री में ज़्यादा किया है FMCG में, बट अगर आज मेरे को बोल दे कि कल इन्फोसिस का बोर्ड में जाके एक प्रेजेंटेशन देना है एंड आपका फॉर्म को दे हैव कॉल्ड फॉर getting appointed as statutory auditors, then I have that confidence. So खाली not only statutory auditors, अगर वो इन्फोसिस बुलाती है या TCS बुलाती है, TCS के बोर्ड, और अगर बोलती है कि नहीं we are going to appoint you as a transaction advisor, then you give me a pitch. So हम लोग वो pitch देने का confidence आ जाता है because आप as rightly mentioned by रौनक भाई, एक जब उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं तो उसका डॉक्टर ही बन जाते हैं हम लोग, है ना. तो सब कुछ उसका A to Z इन एंड आउट सब कुछ पता चल जाता है. सो 5 years if you go to investment banking, or if you want to go for insolvency professional, or if you want to go for a valuer, or if you want to go as a forensic auditor or a risk advisor, वो जो 3 years of articleship तो क्या है कि ठीक है वो articleship होता है, articleship gives a touch point to a corporate world, but 5 years after post qualification is very important. The second most important phase in life, in CA life after articleship, जो आपका करियर को बिल्ड करने में डिसाइड करता है. और अगर ऐसा नहीं है कि आपको अगर रिस्क एडवाइजरी में जाना है तो राइट फ्रॉम डे ईयर 1 ही आपको रिस्क एडवाइजरी में जाना है. इफ यू गो फॉर 5 years एज स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल इन बिग 4 और नॉन बिग 4, देन यू वुड बी एबल टू गेट अ गुड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. 8 years का आपके पास में गुड एक्सपीरियंस हो जाएगा. सो उसके बाद में आप कोई भी फील्ड में आपको कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हो जाता है कि यू गेट अ, अब आपको 26A क्या होता है वो भी पता चलता है, वो भी पता रहता है. GST या 2A 2B क्या होता है वो भी पता रहता है ना. बट अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में राइट फ्रॉम डे 1 चल जाते हो तो आपको 26A क्या होता है या आपका 20 फॉर्म 2A 2B क्या होता है वो पता नहीं रहता है. से सपोज इफ यू गो टू अ फैमिली फंक्शन, मे बी आप फैमिली वेडिंग में जा रहे हो या आपका ही वेडिंग हो रहा है कुछ, तो आपके जो नियर बाय रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स है, वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि इंडेस 1 क्या बोलता है या इंडेस 19 क्या बोलता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स का. वो आपको खाली ये पूछेंगे कि अपना PGBP में टैक्स को कैसे कम करे या फॉर्म 16 में कैसे मैनेज करे फॉर्म 16 को, है ना. सबको ये पूछते हैं, कोई ये नहीं पूछता है. सो आई थिंक to get a good knowledge, and this is our career start point. So below 30 I think you should get yourself engaged in audit assignments, ताकि अपना थोड़ा सा सिक्स्थ सेंस जो छठा आंख होता है, कॉमन सेंस होता है, वो थोड़ा सा डेवलप हो जाए. Great, wonderfully put. Ronak, if I were to ask you, कैसा रहा है पिछला 1 साल? What have you been doing? A day in the life of a statutory auditor. Yes, sir. So, sir, Don't call me sir, yaar, Umang is fine. You can address the audience, that's fine.
ओके, तो बेसिकली बिग फोर का एक फायदा है सर, कि आपका आपका एक्सपोजर बहुत हाई होता है। आप स्टार्टिंग से ही वेरी एट अ वेरी स्मॉल एज यू स्टार्ट टू एंगेज विद दी CFOs, दी डायरेक्टर फाइनेंस। आपकी कुछ सिग्निफिकेंट इश्यूज होती है तो यू डिस्कस विद दी ऑडिट कमिटीज एज वेल। तो इनिशियली एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है बिग फोर के अंदर, और आपको ऐसी लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करने को मिलेगा जो आप बचपन से जिनका नाम सुनते आ रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट्स ये आप यूज करते आ रहे जिनके हैं। प्रोडक्ट्स आप यूज करते आ रहे हैं, राइट सर। सो ये होता है। और बिग फोर के अंदर जो मेरी लर्निंग जो सबसे अच्छी रही है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिट स्टैंड पॉइंट, वो सबसे ज्यादा जो है कि मेरे को अकाउंटिंग और ऑडिट, अकाउंटिंग के प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बिग फोर में होता है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। अभी मैं रिसेंटली अभी सुन रहा था कि ऑडिट के क्लाइंट ने ही ऑडिटर पे केस कर दिया कि ऑडिट सही से परफॉर्म नहीं हुआ है। सो हाउ विल यू प्रूव कि यू नो कि आपका ऑडिट सही से हुआ है कि नहीं? बिकॉज हम यही बोलते हैं कि the audit area we have not documented is not done, is not audited. गलती बोला क्या? तो वैसे देख नहीं, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज नॉट ऑडिटेड, मतलब ऐसा आई फील। करेक्ट। सो तो यही है, तो डॉक्यूमेंटेशन पर्सपेक्टिव से भी हमें बहुत मतलब अच्छी लर्निंग मिलती है। Okay. और So अभी क्या करते हो? What is your day like? I mean, just wanted to know कि what do you do? ओके सर, सो जैसे ही हम अपना लैपटॉप खोलते हैं, वी गेट टू गेट टू अ मेल कि अब हमें कैसे आगे करना है, तो वी मूव फॉरवर्ड। सो फर्स्ट वी प्रिपेयर अ चेकलिस्ट कि ठीक है, हमें ये एरियाज ऑडिट करने हैं, वी हैव टू अप्लाई सो एंड सो प्रोसीजर्स। क्लाइंट, फिर हम क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं, क्लाइंट प्लेस पे फिर टाइम लिया जाता है, क्लाइंट से इंटरेक्शंस होते हैं, क्लाइंट पूछता है कि व्हाई डू यू वांट दिस डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ आस्किंग दिस और डॉक्यूमेंट। सो यू हैव टू कन्विंस देम कि नहीं, ये इस पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं, वी नीड दीज डॉक्यूमेंट्स। एंड यस, द लाइफ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आप होटल्स में रहते हो, यू गेट अ गुड स्टैट्यूटरी ऑडिट में बोलते हैं ना, पार्टी बहुत होती है। तो यस सर। Great, good to know. ठीक है, taking this forward, if so now that we've seen what you do, how does it grow, right? How does a statutory audit grow into that role? मतलब 10 years, 11 years, 15 years down the line, what does the role look like? ओके, सो अंशुल सर, आप बोलेंगे? नहीं नहीं, आप प्लीज प्लीज। नहीं, नहीं सर, because you have significant experience, right? I think you'll be able to answer this better, I think. So 10 years down the line you are talking about? Yes, 10 years down the line, how does this role grow? See, again I would divide into two parts, one into big 4 और big 20 फॉर्म्स है ना। सो वहाँ पे क्या होता है कि वर्टिकल्स होती है, ऑडिट वर्टिकल्स। सो आप एक बार ऑडिट में लग जाते हो, एंड इफ यू डू नॉट स्विच ओवर देन यू बी इन ऑडिट ओनली, एंड मे बी इन 15 years in KPMG or 20 years if you stay in big 4s in like PwC and all, then you be a director, and director से पार्टनर बनने के लिए आपको बिजनेस लेकर आना पड़ता है, तभी आप पार्टनर बनते हो, है ना। Similarly same goes with the non big 4 firms also like of ours. Now if you be at a senior position, maybe as a principal associate, and after 10 years down the line, and if you start bringing business, or if you start pitching clients, and if you be a face of the firm, then it's very easy to be a partner of that firm. So once you be a partner of the firm, then it's not only about limited to statutory audit. Once you be a partner, then it's about more about executing the works or getting the things done and managing the people, and closing the audits in a time bound manner, है ना। बट क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव लेवल में या सीनियर लेवल में, सॉरी मिड लेवल में क्या होता है कि हम लोग का सिंस ऑडिटर्स का ब्लड में रहता है थोड़ा सा गलती निकालने का, तो हम लोग ज़्यादा डिग इन डिग आउट करते रहते हैं। बट व्हेन यू रीच एट अ पार्टनर लेवल आफ्टर 10-15 years, तो थोड़ा सा एक मैच्योरिटी भी आ जाती है, और थोड़ा सा एक क्या बोले, मतलब इंटरेस्ट भी कम नहीं बोल सकता एग्जैक्टली, बट उस टाइम में लॉट ऑफ असाइनमेंट्स हाथ में होते हैं, तो थोड़ा सा एक टाइम इनहेरिटेंस लिमिटेशंस भी आ जाती है। देन इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू स्टैट्यूटरी ऑडिट, बट आप साथ साथ में बिजनेस डेवलपमेंट भी कर रहे हो, साथ साथ में आप एडवाइजरी भी कर रहे हो। से सपोज हो सकता है आप एक ऑडिट क्लाइंट को आप डेफर्ड टैक्स की एडवाइजरी भी कर रहे हो, आप रिवैल्यूएशन कैसे करना है बुक्स में, और कैसे बुक्स की नेटवर्थ को थोड़ा सा ठीक करना है,
that वो भी advisory कर रहे हो, may not be to the audit clients or may be to non audit clients जिसमें आप audit नहीं कर रहे हो, because section 144 है जिसके चलते हम लोग को audit clients को non audit advisory नहीं देना चाहिए, and we don't do that also, even big fours also don't do that. So but non audit clients को हम लोग we start giving such kind of advisories also once we be in audit profile for more than a decade. तो क्या थोड़ा सा ज्ञान का भंडार थोड़ा अब क्या है कि बढ़ जाता है, तो उसको निकालना भी पड़ता है मार्केट में, मोनेटाइज करने का टाइम आ जाता है आफ्टर 10 years. So and if you are in with some practice firms, or maybe if you are with big four firms, then you start getting calls from other peer firms also that if you want to join us, then please come, we don't want to interview you, just come to us, or we will give you the offer letters. ये सभी calls आने लग जाते हैं if you are good in audit and अगर आपका मार्केट में एक नाम हो जाता है तो. Nice. And can you also please elaborate on the ballpark pay scale? क्या होता है जैसे when you join as a fresher, what is the pay scale like? How does it grow over time when you reach at a senior level? So pay scale, it depends again on city, and again depends on the firm which you are working for. So big four, if I am not wrong, I think for fresher it would be around 7 to 9 lakhs, be it statutory audit, be it risk advisory, you know? And for mediocre firm like ours, or maybe other peer firms like ours, it would range from not 7 to 9, but it would range from 6 to 8.5. So what I have done, what we have done in the last 3-4 years is we have offered candidates in between 6 to 8.5 lakhs in hand. I'm not talking about CTC, but for big fours it might be I think 7 to 10 CTC. और अगर आप उसी आर्टिकलशिप फॉर्म में ज्वाइन कर रहे हो और अगर आप होम ग्रोन इंटर्न है तो थोड़ा सा एक प्रिविलेज मिल जाता है, थोड़ा सा एक प्रीमियम प्राइसिंग मिल जाता है, तो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट 20-30% मोर देन द फ्रेश एंट्रीज. So एक वो ऑलवेज एक एडेड एडवांटेज होता है होम ग्रोन इंटर्न्स के लिए. दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिकली आल्सो फील. Got it. And how does it grow over a period of time? So for example, so over a period of time, again अगर आप up to 5 years का देखें तो how quickly you are closing the audits and how quickly you are presenting the significant matters to the audit team, or how quickly you are presenting the significant matters with the client. Say suppose I give you an example, एक कुछ पीएल का आइटम है जो प्रिंटिंग स्टेशनरी में डेबिट होना चाहिए था, बट हो सकता है अकाउंटेंट ने जो बुक कीपर, जो क्लाइंट का बुक कीपर ने, उसने क्या किया कि उसको ट्रैवलिंग में डेबिट कर दिया है. ठीक है. सो अब आप एज एन ऑडिट मैनेजर या आपके आर्टिकल असिस्टेंट कुछ 5-7 एक ऐसा कुछ क्वेरीज निकालते हैं और आप उसी में अगर उलझे हुए रहते हैं पूरा दिन तो होगा नहीं. बिकॉज अगर आप पीएल लेवल में देखो, सो वो तो पीएल में डेबिट होना था, बट हो सकता है हेड इधर उधर ऊपर नीचे हो गया, और हो सकता है आपका जब ग्रुपिंग हो रहा है फिनेंशियल्स में वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस में दिख रहा होगा. ठीक है. तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस में दिख रहा है तो वो फर्क ही नहीं पड़ता है. आप अगर फिनेंशियल एफएस लेवल में देखें तो टीवी लेवल में हो सकता है फर्क दिख रहा होगा. सो अपने को यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि ये गलती तो निकला है, बट ये ऑब्जर्वेशन को ठीक करवाने के बाद में क्या इम्पैक्ट आएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में. से सपोज आई गिव यू another example. I hope I was quite clear on that. एक टीडीएस का डिपॉजिट में थोड़ा सा कुछ लैप्सेस हो रहा है, मे बी ऑलवेज इरेगुलर, बट दे आर रेगुलरली डिपॉजिटिंग, बट ऑलवेज मे नॉट बी ऑन 7th बट मे बी ऑन 11th या 12th. एंड इफ यू ब्रिंग दैट पॉइंट टू द ऑडिट पार्टनर एंड हाईलाइट इट, और अगर आप कारों में ड्राफ्ट भी करके दे देते हो कि कारों में ये पूछता है ना वेदर द कंपनी इज रेगुलर. एक तो आउटस्टैंडिंग ड्यूज फॉर मोर देन 6 months वो भी पूछता ही है, बट वो ये भी पूछता है कि वेदर द कंपनी इज रेगुलर और नॉट. अपने उस चीज को स्किप आउट कर लेते हैं मैक्सिमम सिनेरियोज में. बट अगर आप ऑडिट पार्टनर को बोल रहे हो और आप ड्राफ्टिंग के साथ में सजेस्ट कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो कि व्हाई नॉट वी मेंशन दैट द कंपनी इज नॉट रेगुलर इन डिपॉजिटिंग टीडीएस ड्यूज, the company is regularly depositing all dues except there are some ordinary delays in the repayment of TDS. So आपके ऑडिट पार्टनर खुश हो जाते हैं, then आप एज एन ऑडिट मैनेजर आप प्रमोट होते जाते हो. सो बिग 4 फॉर्म्स हो चाहे स्मॉल फॉर्म्स हो, उसमें आप you get proportional opportunities in that. Okay, got it. So if I were to ask you, say for example pay scale, so it's fine, we got to know that for freshers it's something like this, but what are the type of companies that are looking for that? देखो big fours वगैरह तो है ही, but Ronak, if I were to ask you when you were applying, right, what are the kind of opportunities that people can look for
as a statutory audit in startups, in big fours, in industry? ओके सर, सो सर टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट, सबसे पहले जो बिग फोर है उसके दो आर्म्स हैं. एक तो ग्लोबल आर्म है, एक इंडियन आर्म है. ग्लोबल में वी हैव PwC, IAC, Deloitte USI, KPMG ग्लोबल सर्विसेज एंड EYGDS. वहाँ पे यूजुअली फिलीपींस, US के काउंटर पार्ट्स का ऑडिट यहाँ से होता है. एक तो वो हो गया, एक अपॉर्चुनिटी वो हो गई. एक अपॉर्चुनिटी हमारी इंडियन प्रैक्टिस में है ही है. हमारे बिग फोर्स में सारे, ऑल द बिग फोर्स वी हैव, बिग सिक्स आल्सो वी हैव. एंड बियॉन्ड बियॉन्ड अगर आप ऐसे बात करें कि 6 ईयर 2-3 इयर्स डाउन द लाइन, तो आपको क्या क्या कर सकते हैं. तो इंडस्ट्री में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है फाइनेंस कंट्रोलर की, और आपको रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, FP&A, ये सारी प्रोफाइल्स आपको मिल जाती है अगर आप बिग फोर पर्सपेक्टिव से, मतलब अगर आप बिग फोर से अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, या अगर आपका एक्सपीरियंस लिस्टेड क्लाइंट्स में ज़्यादा है. कभी यूजुअली ये होता है, आई हैव सीन पीपल की वो स्विच कर जाते हैं अपने क्लाइंट्स में, जिन क्लाइंट्स का वो ऑडिट कर रहे हैं यूजुअली वो वही एब्सॉर्ब कर हो जाते हैं. एंड देयर, अगर आप बिग फोर से बात करें तो अगर आप बिग फोर में है तो यू ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग अब्रॉड. इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स आती है, और यहाँ के काउंटर पार्ट्स आपको एब्सॉर्ब कर लेते हैं सेम लेवल पे. Okay, so you are also saying कि international opportunities भी काफी सारी बहुत, होती हैं हाँ, in big ये fours. सर इन बिग फोर्स. अच्छा, and can you elaborate on the opportunities that are available in startups? स्टार्टअप्स में तो अपॉर्चुनिटी इज लाइक कि इफ यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस विद द बिग फोर, आपने उतना एक्सपोजर ले लिया है, यूजुअली यू गेट अ वेरी सीनियर रोल इन स्टार्टअप्स. यूजुअली स्टार्टअप्स एक्सेप्ट, मतलब बहुत जल्दी एक्सेप्ट हाई सीनियर लेवल पे एक्सेप्ट कर लेते हैं. But not for freshers? फॉर फ्रेशर, यस सर, फॉर फ्रेशर अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं. लाइक उड़ान हो, फ्लिपकार्ट का अपना एक प्रोग्राम होता है. तो स्टार्टअप्स में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, फ्रेशर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और अगर आप ऑडिट से जाना चाहें तो आपको सीनियर लेवल काफी जल्दी मिल जाता है. Okay. So if I were to ask you, चलो ओपनिंग्स भी है, मार्केट ग्रो भी होने वाला है, कैंडिडेट्स भी बहुत हैं, कंपटीशन भी बहुत है. What is the standard profile? भाई 100 लोगों में से how do I stand out for that specific profile? What are the things that तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कंपनीज आर लुकिंग फॉर? What are the things that I can polish? ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर सबसे ज्यादा तो मेरे को जो लगा है कि आपका गुड अगर एक्सपोजर है ऑडिट में इन योर आर्टिकलशिप, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इंडियन स्टैट्यूटरी, इंडियन आर्म से अगर आप देखोगे तो यूजुअली अटेम्प्ट्स मैटर, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड सप्लाई गैप. अगर डिमांड अच्छी है और सप्लाई थोड़ी कम है तो 3-4 अटेम्प्ट्स तक एक्सेप्ट हो जाता है. बट अगर डिमांड कम है तो 1 या 2 अटेम्प्ट्स के अंदर भी लेते हैं फर्म्स. और टॉकिंग अबाउट ग्लोबल फर्म्स, तो ग्लोबल फर्म्स मेरी जितनी नॉलेज है 5 अटेम्प्ट्स तक दे कंसिडर. और बाकी जितनी इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज आपकी टेक्निकल नॉलेज पे सबसे ज्यादा करती है. तो प्रोफाइलिंग पर्सपेक्टिव से यस, अगर बिग फोर होगा तो आपको FMCG सेक्टर या ऑयल एंड गैस, जो मतलब अच्छी, मतलब जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, वहाँ पे आपको बहुत आसान, मतलब इजीली आपका प्रोफाइल सेलेक्टेड हो, मतलब कंसिडर हो जाता है. बट अगर आपकी आर्टिकलशिप अगर मिड साइज फर्म से है और आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करना है और आपको स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो आई सजेस्ट कि आप टॉप CA फर्म्स में पहले रहे, मतलब जॉब कर लीजिए. एंड 1 or 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आपको भी वही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो एक आर्टिकल को मिलती है बिग फोर की. Okay. To continue, Anshul, if I were to ask you, since you are your firm is also actively hiring, what are the skill sets? What are the qualities that you would look for in a candidate? See, for a fresher, we don't expect much, and neither other firms expect much. But अगर थोड़ा सा एक रीजनेबल नॉलेज है, से सपोज हो सकता है कि आपने इंडेक्स का ऑडिट नहीं किया हुआ है, बट अगर आपने इंडेक्स का कुछ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स गो थ्रू किया है, से सपोज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इंडेक्स 116. सो इंडेक्स 116 जब आया, राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटीज, उसका बड़ा इम्पैक्ट था ऑन एविएशन इंडस्ट्री. सो अगर आप जो भी फर्स्ट इंडेक्स इंप्लीमेंट होती है कहीं पे भी, तो वो लोग अपना नोट्स अकाउंट्स में या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में हाउ दे हैव इम्पैक्टेड द
फिनेंशियल्स, वो एक ब्रीफ नोट देते हैं, मे बी हाफ पेज नोट। और अगर आप ऐसे 5-7 कंपनीज लाइक स्पाइस जेट, इंडिगो, द कंपनीज विच आर द कंपनीज जिसका एनुअल रिपोर्ट्स इजीली पब्लिक डोमेन में मिल रहा है, सो उसका अगर आप स्टडी करते हो तो आपको एक इंड एस 116 का ब्रीफ आइडिया मिल जाता है। मे नॉट बी एट एंट्री लेवल, बट उस इंड एस 116 से चलते ईबिटा लेवल में क्या चेंज आती है कंपनी का, तो आप बता पाते हो। से सपोज अगेन आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल। 2016-17 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड। सो इन गैप और इंड एस में क्या डिफरेंसेस आया, क्या उसमें क्या रिकॉन्सिलेशन एडजस्टमेंट्स करना पड़ा, उसका एक हम लोग को नोट देना पड़ता था कंपनी में। सो इफ यू रेफर टू एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक मे बी 10-15 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 1 or 2 फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्टर, तो आपको एक इंडेक्स का फेयर नॉलेज मिल जाता है, जिसके चलते आप इंटरव्यू में कुछ बोल पाते हो, आप ब्लैंक नहीं रहते हो। आपको ये बोलना नहीं पड़ता है कि मैंने इंडेक्स का जीरो नॉलेज है, मेरे को खाली थियोरिटिकल नॉलेज है। आप कुछ बोल सकते हो, यस आई हैव नॉट ऑडिटेड बट आई यूज्ड टू डू सम research on the annual reports on the Ind AS financial statements. So I have gone through maybe 15-20 Ind AS financial statements, and I have studied such and such Ind AS portion of those companies, and I know I can I have good reasonable knowledge and I have some interest in doing so. So this is the one thing. Other thing, आप कुछ experiences share कर सकते हो जो आपने अपना आर्टिकलशिप पीरियड में किया है। सपोज एक कंपनी का वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस बोल के उसने डेबिट किया है बुक्स में, या मे बी अदर एक्सपेंसेस के अंदर में सेपरेट लाइन आइटम दिख रहा है, बट उसका डेवलप वेबसाइट ही नहीं है। से सपोज आपने एक ऐसा कुछ रिकवरी किया या आइडेंटिफाई किया एक स्टैट्यूटरी ऑडिट के टाइम में, एक कंसल्टेंट को पेमेंट हो रहा है फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, बट उसका वेबसाइट ही नहीं है उस कंपनी का। सो दैट माइट बी अ फ्रॉडुलेंट एक्सपेंस। लाइक इफ यू हैव आइडेंटिफाइड सम ऑफ द घोस्ट एम्प्लॉइज, देन यू कैन नरेट सच स्टोरीज इन इंटरव्यू। बट आप जो भी नरेट करोगे, बी व्हाट यू आर, जो आपने किया है उसी को कीजिए। और नॉर्मली क्या करते हैं इंटरव्यूअर, अगर स्मार्ट इंटरव्यूअर्स या स्मार्ट रिक्रूटर्स रहते हैं तो आपका सीवी में जो लिखा हुआ रहता है उसी को डिग इन और उसी को डिग आउट करते हैं वो लोग, उसी को ड्रिल करने लग जाते हैं, है ना। वो लोग और बाहर से कुछ पूछते नहीं। से सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल, आई वाज टेकिंग एन इंटरव्यू टुडे मॉर्निंग, तो उन्होंने लिखा था फाइलिंग ऑफ फॉर्म 15 जीबीज। तो मैंने फाइलिंग ऑफ फॉर्म 15 जीबीज का, अगर आप 15 चाहिए देखते हो तो वहाँ पे 4 पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो उनको पूछा मैंने, डू यू नो अबाउट दिस पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ये सो उन्होंने बोला कि आई हैव डन 15 जीबी बट आई हैव नॉट डन 15 सीए। सो इट इज क्वाइट एबनॉर्मल कि आप 15 सीबी कर रहे हो बट आपको 15 सीए का नॉलेज नहीं है। थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए। आपने सीबी में तो लिखा है 15 सीबी एंड सीए बोथ, और आप इंटरव्यू के टाइम में बोल दे रहे हो कि मेरे को 15 सीए का नॉलेज नहीं है बट 15 सीबी का नॉलेज। तो अगर नहीं है तो आपको फिर नहीं लिखना चाहिए था, आप खाली 15 सीबी लिखते, सीए नहीं लिखते। So these are some of the things which you have to take care in your mind. Like सीबी में क्या लिखना है नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से फॉर्मेट मिल गया या उमंग भैया ने फॉर्मेट दे दिया या शिवम भैया ने फॉर्मेट दे दिया तो आप मैं उसी को कॉपी कर दूं। हो सकता है आपने वो जीएसटी का 2B का रिकॉन्सिलेशन कभी किया ही नहीं, बट आप उसमें लिख दे रहे हो रिकॉन्सिलेशन ऑफ जीएसटी विद बुक्स ऑफ अकाउंट। और अगर आपको उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया था या कौन सा टूल यूज किया था, तो आप अगर उसमें एक्सेल भी नहीं बोल पा रहे हो, है ना, पता ही नहीं रिकॉन्सिलेशन कैसे होता है, बिकॉज अपना हाथ से कभी किया नहीं, आप अपना हाथ से कभी किया नहीं है, तो दिक्कत हो जाता है। सीनेरियोज गेट डिफिकल्ट, सो थिंग्स गेट, फिर क्या होता है कि अपने को अगर आता भी है और एक छोटा सा चीज के चलते ना अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है इंटरव्यू में। सो वो आइज से पता चल जाता है इंटरव्यूअर को। सो फिर अपना, अब आपको पता ही है 10 का वैकेंसी रहता है तो इंटरव्यू देने वाले 100 होते हैं या मे बी एटलीस्ट 50 तो होते ही है। सो आउट ऑफ गेटिंग दैट, और फिर अगर आप नेगोशिएशन में भी थोड़ा सा स्ट्रांग बन सकते हो ना, अगर आप कॉन्फिडेंटली और अगर अच्छा से इंटरव्यू में दे पा रहे हो अपने आप को। सो दैट इज द थिंग। एंड ठीक है, I'll throw some more experiences as we go forward. So I think this is the quite few things जो अपने को ध्यान रखना चाहिए। स्किल सेट्स में वही लिखिए आप अपना सीवी में जो आपको पता है, एंड बी व्हाट यू आर, है ना। कोई फेंकने का कुछ नहीं है, कुछ प्रिटेंड करने का नहीं है कि मेरे को बहुत कुछ आता है। जो आपको आता है वही बोलिए आप। Got it. Great. So, apart from what both of these mentors said, that was very well put. Apart from that, from my experience, a lot of companies also look for good communication skills, right? I mean, if you have very good technical skills, but a lot of people are not able to articulate that in the interview. I don't know if it is maybe interview anxiety या क्या होता है, but communication also forms a very important part of the interview process, right? So
Great. Yeah. So coming to the final part of our session, right? I mean, if we were to suggest these candidates on what they can do, how they can polish their profiles and skill sets in the coming 30 days, what would you recommend them to do, Anshul? Sorry, can you please repeat? I got If we some. were to recommend them of the things that they can work on in the next 30 days, 45 days until the results, क्या आप चीजें polish करनी चाहिए, क्या skill sets improve करना चाहिए to upgrade their profiles? ओके, सो एज आई सेड, आप इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा बहुत देख लेना, उससे एक तो बहुत हेल्प मिल जाती है। और एज मेंशन बाय उमंग जी, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे कौन सा वर्ड को यूज़ करना है, कौन सा वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, उसको थोड़ा देख लीजिए। और दूसरा, आप अपना प्रोफाइल तो सब कोई बना ही रहा होगा, एंड आई थिंक बाई नाउ आई थिंक एवरीवन हैज मेंशन्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए शुभम मुंद्रा, मे बी सीए मेहुल सोनी, सीए खुशबू नरवानी, ऐसा करके आपने प्रोफाइल तो बना ही लिया होगा। और आप लोग सीए मॉम के साथ में, तो ऑब्वियसली आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड अ प्रोफाइल ऑफ योर्स। सो प्लीज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट प्रोफाइल और आप उसका ऑडिट खुद से कर लो। अगर आप अपना ऑडिट खुद से कर पा रहे हो तो आप सोच लो कि आपका ऑडिट भी इंटरव्यू में बढ़िया से हो जा रहा है और आप ऑडिट प्रोफाइल में जाओगे। नॉट ओनली ऑडिट, आई एम नॉट इनकरेजिंग ओनली ऑडिट, बट एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट। पहले आप अपना चाहे ऑडिट बोल लो, चाहे अपने सीवी का ड्यू डिलीजेंस कर लो अच्छा से खुद से। उसके लिए प्रिंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। आप स्क्रीन में हो सकता है एवरीथिंग्स माइट नॉट कम इनटू नोटिस। सो आप हो सकता है कि अपना डेट ऑफ बर्थ में 07/12/99 लिख रहे हो, अब वो 99 हो सकता है, 1999 भी हो, 2099 भी हो। अब when you are mentioning the date, when you are signing on the date, like say 23/06/22 लिख के छोड़ रहे हैं आप, है ना। So things matter, like say suppose you are mentioning May 2022 in one of the places and May only 22. So CV is the picture of your face, CV is a face, वो CV पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, स्किल्स में देयर आर लॉट ऑफ वेबिनार्स गोइंग ऑन, so you should attend some of the webinars related to audit or related to companies act, or maybe related to GST। ऐसा नहीं है कि GST काम नहीं आता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में सब कुछ काम आता है, ऐसा कुछ फील्ड नहीं है जो काम नहीं आता। इवन वैल्यूएशंस डू हेल्प इन स्टैट्यूटरी ऑडिट, लाइक इंड AS 36, AS 28। और अभी शेड्यूल 3 में काफ़ी अमेंडमेंट्स आए हैं लास्ट ईयर, दे आर गेटिंग एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉर द फर्स्ट टाइम इन आफ्टर अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल। सो आप उसका नोटिफिकेशन को जरूर देख लो, है ना। देयर आर मेनी प्रेजेंटेशंस गिवन बाय मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आई विल आल्सो शेयर सम ऑफ द प्रेजेंटेशंस मेड बाय मी इन डिफरेंट फोरम्स। सो आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर लो, क्या डिफरेंस आया, पहले क्या था, अभी क्या है, क्या नया चीज़ आ गया है, ताकि आपका इंटरव्यूअर हो सकता है ये पूछ सकता है कि आप आफ्टर गिविंग द रिजल्ट्स योर आर्टिकलशिप पीरियड वाज आल्सो ऑलरेडी ओवर, आप क्या कर रहे थे 2 महीना तक। तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने कुछ किया विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल 3, मैंने कुछ पढ़ा, कारो 2020 पढ़ो, कारो 2020 में क्या नया प्रोविजंस आ गए। खाली इतना अगर हम लोग बोल के आएंगे 20 पहले 16 था, अभी 21 क्लॉजेस था, दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू स्पीक समथिंग मोर, लाइक इफ यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर उसमें अगर आप बोल के आते हो बेनामी ट्रांजेक्शंस के ऊपर में शेड्यूल 3 में कुछ रिक्वायरमेंट्स आया है और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, अगर आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हो। आई डोंट वांट टू गो इनटू द कोर टॉपिक, टेक्निकल टॉपिक नाउ, है ना, फिर बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा। सो अगर आप बोल के आ जाते हो और कारों में एज एन ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट ऑन सच थिंग्स, लाइक से सपोज कुछ क्वेश्चंस कारों में ऐसा है जो नथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट बट रिलेटेड टू यू योरसेल्फ। उसमें ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि अगर आप फ्रॉड आइडेंटिफाई किए हो तो आपने एडिटिव 4 का फाइलिंग किया है कि नहीं किया है। सो कुछ क्वेश्चन ऐसा है। दूसरा एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हुआ है कि नहीं हुआ, वो सब। और उसमें फॉर्मेलिटी जो भी कंप्लायंसेस होता है, वेदर यू हैव कंसीडर्ड द इश्यूज एंड ऑल, वेदर यू हैव डन और नॉट, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कुछ रिलेशन ही नहीं है। मैनेजमेंट हैज नथिंग टू डू विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट उसमें ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग को ही पूछ लिया है। तो वो सब चीज़ इफ़ यू गो एंड स्पीक आउट सच थिंग्स, हो सकता है कारों में देयर आर मेनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। इन्वेंट्री का जो वो बोल रहा है कि बुक रिकॉर्ड्स और उसका रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, बट देयर आर सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज उसमें इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। से सपोज आज हो सकता है एक कंपनी 100 स्टॉक स्टेटमेंट्स फाइल कर रहा होगा बैंक्स को, मे बी एट डिफरेंट ब्रांच लेवल, HO लेवल में, इंटर लेवल में अलग अलग। तो आप क्या 100 को ही वेरीफाई करोगे एज एन ऑडिटर? और अगर ठीक है कर भी लेते हो कि ठीक है अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारा टेक्नोलॉजी टूल्स आ गए हैं, हो सकता है कहीं पे 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा, नॉट
ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट 10 रुपीज। कहीं पे 10 लाख का डिफरेंस आ रहा होगा, जेन्युइन मिस्टेक होगा। 15th को कंपनी ने स्टॉक स्टेटमेंट फाइल कर रहा था, तो उस टाइम में सब बराबर था। स्टॉक स्टेटमेंट उसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस में प्रिपेयर हुआ और स्टॉक स्टेटमेंट बैंक को दे दिया। बट आप 22nd को जब जीएसटी का रिकॉन्सिलेशन कर रहे थे, जब जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर रहे थे, तो पता चला कि एक एंट्री छूट गया था बुक्स में। तो आप एक एंट्री पास करते हो, आपका मैनेजमेंट पास करती है, तो वो तो जेन्युइन चीज है। अब उसको अननेसेसरीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे रिपोर्ट करेंगे हम लोग? एज एन ऑडिटर्स वी हैव टू हेल्प द मैनेजमेंट ऑल्सो। सो अगर आप ये सब चीज जाके अगर इंटरव्यूअर को बोल रहे हो या प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने आप को, तो एक तो ऑथेंटिसिटी दिखता है कि हाँ आपने ग्राउंड रियलिटी में कुछ किया है। ठीक है, सो बी व्हाट यू आर, अगेन आई वुड लाइक टू से। Great. So Great. Ronak, if you want to add, what should candidates who want to go into statutory audit work on in the next 30 days? ओके सर, तो अब मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग आपको इंडियस से पढ़नी चाहिए। आपकी सीए फाइनल की बुक्स वापस से निकाल लीजिए, सीए आईएफआरएस थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और ऑडिट पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगा कि हम ना गूगल कर सकते हैं वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैप्शंस की, लाइक हम फिक्स्ड एसेट का कैसे ऑडिट करें। तो सीए क्लब है, सीए क्लब इंडिया आपको बताता है कि आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो हमारे जो भी क्वेश्चंस थ्रो करते हैं ऑडिट पर्सपेक्टिव से, हम एसर्शंस के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, हम ये पर्टिकुलर चीज के हम कैसे ऑडिट कर सकते हैं, हम इस बारे में पूछते हैं। तो ऑडिट पर्सपेक्टिव से ये हो गया। और आपको जैसे अंशुल सर ने सही बताया कि आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के बारे में बहुत मतलब बहुत ग्रिल किया जाता है, क्योंकि अभी अभी मतलब आप पास हुए और आपको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शेड्यूल 3 में क्या ब्रॉड चेंजेस आए हैं, क्या कारों के रिपोर्टिंग में चेंजेस आए हैं। और तो कंपनीज एक्ट के तरह पर्सपेक्टिव से भी हम थोड़ा सेक्शन 143 एंड फ्रॉड रिलेटेड रिपोर्टिंग्स, आईएफसी ओवर एफआर, ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें थोड़ा सा हमें उसको एक बार ब्रश अप कर लेना चाहिए। और टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स भी हमें गो थ्रू कर लेने चाहिए। Okay, okay, okay. Great, great, great. Yeah, thanks a lot for such an informative session. Before we move towards a Q&A session, जिन को भी questions है, please collate your questions, put it in the chat, or you can ask them directly. For people who have switched on their videos, we'll give them priority. Before we move on, just a reminder that the GIR workshop starts on 27th, where we cover all these topics in detail, technical plus soft skills plus communications, right? So that's just a reminder. We'll move on towards questions. If anybody has questions, can you please raise your hands? कोई भी questions नहीं है, एकदम clear है। हाँ शुभम। Sir, what if we want to switch somewhere else after some time, like or from switch someplace else to stat audit? Like I am interested in IDT and I want to switch from IDT to stat audit, or from stat audit to IDT. तो सर आप आंसर करेंगे या मैं आंसर करूं सर? कोई भी चलेगा, ठीक है। अंशुल, you can take the answer. See, I assume you are not in IDT also or not in statutory audit also now, है ना? आप अभी आर्टिकलशिप जस्ट क्लियर करके बैठे होंगे और आप सीए फाइनल रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे। आई थिंक इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम शुभम, सो प्लीज रेक्टिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना? सो आपको से सपोज हो सकता है आपने आर्टिकलशिप पीरियड में आईडीटी में अच्छा काम किया होगा, हो सकता है आपने जीएसटी रिकॉन्सिलेशन किया होगा, कुछ जीएसटी रिफंड्स फाइल किया होगा, बट थोड़ा बहुत हो सकता है आपने अपील्स का भी फाइल किया होगा, या हो सकता है थोड़ा सा प्लेस ऑफ सप्लाई या ये सब कुछ में थोड़ा सा ओपिनियन दिया होगा। इससे ज़्यादा आर्टिकलशिप में कोई कर नहीं पाता है, टू बी फेयर इनफ, टू फेयर आइडिया। बट अगर आपको जीएसटी में जाना है, सो आप थोड़ा सा कुछ और कीजिए। जीएसटी काउंसिल्स का जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं अभी एवरी मंथ, उसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए और उसके पीछे में लॉजिक क्या है। से सपोज टेक्सटाइल में कुछ रेट्स ऊपर नीचे करने का बात हो रहा था, बट एक साल उसको डिफर किया गया है ऑन द रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द इंडस्ट्री, है ना? सो एक आईसीआई का अच्छा वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ idt.ici.org। इसमें अगर आप ये साइट में जाके देखोगे तो वहाँ पे सेक्टर वाइज स्पेसिफिक चीज़ों का हैंडबुक दिया हुआ है। आपका सेक्टर वाइज जीएसटी का कहाँ पे इम्पैक्ट है वो दिया हुआ है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर स्कीम के चलते आपका
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज देयर इनपुट इज एट 12% बट आउटपुट इज एट 5%, तो बुक्स में 5%. बैलेंसेस है ना, तो उसको कैसे इंडस्ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए विद द मिनिस्ट्री, अब मिनिस्ट्री को 12% कर देना चाहिए दोनों चीज में या 5% कर देना चाहिए, ये सब चीज में थोड़ा सा रिसर्च करो, सो दैट लाइक से सपोज इफ यू गो टू पीडब्ल्यूसी आईडीटी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू में जाओ, तो आप अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बोल रहे हो तो आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा अपॉर्चुनिटीज, यू गेट nominated for the another round or you get selected and आपको ऑफर लेटर में भी at the end of the day मिल जाएगा। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे को आईडीटी में जाना है और अगर आप आईडीटी के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगा ही नहीं रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर आर्टिकलशिप एक्सपोजर, देन वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड हो जाएगा फिर मेरे को ये बोलना कि मेरे को आर्टिकलशिप सॉरी पोस्ट क्वालिफिकेशन आईडीटी में जाना। नाउ आई कम टू योर क्वेश्चन, अगर आपका आईडीटी में डीप इंटरेस्ट है और अगर आप ये सब रिसर्च कर रहे हो, नॉट जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आप ये सब रिसर्च कर रहे हो और आपको अगर पैशन है, इफ यू आर हैविंग सम पैशन अबाउट आईडीटी, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन आईडीटी, एंड इट इज नॉट सच दैट कि आप 5 साल आईडीटी करने के बाद में स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं आ सकते हो। बिग फोर्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इवन इन बिग 20 फर्म्स, से सपोज स्टैट्यूटरी ऑडिट का एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, ऑडिट को इनिशिएट करता है, बट जहाँ पे भी जीएसटी का चीज आता है, लाइक इन केस ऑफ थोड़ा सा जीएसटी का अगर एक्सपर्ट लेवल का कोई एप्लीकेशन आता है, लाइक इन केस ऑफ ईपीसी इंडस्ट्री अनबिल्ड रेवेन्यू में जीएसटी कब चार्ज होना चाहिए या कब चार्ज नहीं होना चाहिए या कब रिवर्स चार्ज का क्या इम्पैक्ट आता है ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो वहाँ पे क्या करते हैं एश्योरेंस वाले भी जीएसटी अपना इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट का हेल्प लेते हैं वो लोग, है ना। सो यू वुड बी पैरेलली वर्किंग विद स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट्स आल्सो, और अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट वाले टीम को अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं, इफ यू गेट अ गुड रेपो विद देम और गेट अ गुड रेपो विद एश्योरेंस ऑडिट एश्योरेंस पार्टनर्स और एश्योरेंस टीम का डायरेक्टर्स के साथ में, देन मे बी 5 years डाउन द लाइन यू गेट अ गुड इजी ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम हियर एंड देयर, मे बी फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट भी आप जीएसटी में आ सकते हो, बट वो 5 years में आपको ये सब चीज में थोड़ा सा रिसर्च करते रहना पड़ेगा, है ना। आप जीएसटी में काम कर रहे हो अभी और 5 साल आपने शेड्यूल 3 में क्या आया, कंपनी एक्ट में क्या आया, वो कुछ देखा ही नहीं है, और आप 5 साल बाद में उठ के आपका आप ट्यूबलाइट खुली है, आप बोल रहे हो कि मेरे को थोड़ा सा जीएसटी में जाना है, then that will be quite wrong. So you have to make a balance. So it is not only about the CFM or your job profile which will give you an experience. आप morning evening भी अगर half an hour 15 minutes 45 minutes every day निकाल रहे हो, then that will give a very big impact on your career. So I would like to demonstrate one thing on the screen. If I'm even now Yes, 30 yes. seconds 30 seconds please मेरे को, है ना। I've given you access. Okay. I hope my screen is visible to everyone, yes? Yes. Yes, sir. So 1 to the power 1 is how much? 1. 1 to the power One. 1 कितना होता है? 1 ही One. होता है. But 1 to the power अगर आप 37 करते हो तो you can imagine what would be the number? Still 1. Still 1, yes. अब आप ये इमेजिन कर सकते हो क्या 1.01 to the power 37 कितना हो सकता है? Higher than 1. Higher than 1, है ना। अब इंटर करते हैं थोड़ा सा, 1.44 होता है। So even if you are giving 1 hour तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। Even if you are giving 10 minutes every day for a month, अगर कोई सेक्टर के लिए है तो आप उसमें 1 और 1.44 में आप डिफरेंस देख पा रहे हो। 44% आपका नॉलेज इनहेंसमेंट हो जाता है। So it depends on you how you are working back end में। Right, sir. So to sir, I would like to add some points. मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको आईडीटी से स्टैट्यूटरी ऑडिट में मूव इन करना है तो बी रेडी, या तो आपका एक लेवल डाउन हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर आपका हो चुका है तो आप ये बी रेडी कि अगर आप सीनियर है तो आपको एग्जेक्ट होगा, अगर आप एएम है तो आपको सीनियर का लेवल मिलेगा, और अगर आपको ना ग्रिल किया जाएगा टेक्निकल्स में, जैसे सर ने राइटली बोला कि आपको आप आईसीआई की साइट पे जाइए और बी अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट प्रॉब्लम्स दैट इंडस्ट्री इज फेसिंग, बट मैं ये कहूँगा कि मतलब ठीक है, इट्स ओके कि आप 2 प्रोफाइल में स्विच इन कर रहे हो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट आप ज्यादा करोगे तो इट विल इम्पैक्ट योर ग्रोथ, और after 1-2 years it is not at all a problem, क्योंकि 1-2 years में exposure is more important than the real knowledge that you are actually getting experienced on the real core field that you are in.
Okay. 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 Thank you, I sir. hope your question gets clear, Yes, sir. right? Sir, I Khushbu, have one more question. let's take Khushbu first, and then Sure, फिर sir. वापस तुम पे आते हैं. Khushbu, Okay. Khushbu, So you're on first mute. of all, greetings to amongst the. Can you? Yes, Am I yes, audible? yes, you're audible, Khushbu. Uh, First of all, greetings to amongst the Anshul sir and Ronak sir. Sir, recently about screening from one of the big four. So, what all things should I get ready for tomorrow's screening? So is it HR screening or technical screening? Sir, actually, it is on your screening. Sorry? It's a first mail about the screening. It's a screening mail that it will be gonna be screened tomorrow morning. So what ठीक things है should I be ready for? रौनक भाई over to you please. Hey, can you just repeat your question? I could not hear you. If you can just type in the chat box or. Or Khushbu, you Sir, can 1 switch hour off your video and speak. I think there is some internet problem. You can switch off your video and speak. It's fine. and am I audible now? Yes, yes, it's pretty clear. Sir, 1 hour ago, I just got a mail from one of the big four. Tomorrow I have screening. So what should things I'll be ready for? Screening as in आपका selection हो गया? नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ है. मैं सिर्फ अप्लाई किया ऑप्शंस पे. Khushbu, your voice is not clear. Can you type your question in the chat? I have understood your question. Your question is आपका कल इंटरव्यू है, स्क्रीनिंग है, तो मैं क्या करूं, क्या चीज में ध्यान दूं? देखिए, अब आप कुछ मत करो, आप आराम से सो जाओ और आराम से उठना है ना. बी व्हाट यू आर. अब कल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो. अब 30-40 डेज के बाद में अगर कुछ हो सकता है, देन वी कुड हैव डन समथिंग. लेकिन आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू और डिस्करेज यू नाउ. आप आराम से सोना आज 8 घंटा. गुड स्लीप. व्हाट्सएप को थोड़ा दूर कर देना, बस उतना ही है. स्नैपचैट, इंस्टाग्राम को थोड़ा दूर कर देना. आराम से बढ़िया से सोना. और कल सुबह उठते ही थोड़ा सा इकोनॉमिक टाइम्स देख लेना, थोड़ा सा बिजनेस स्टैंडर्ड देख लेना. मोबाइल में ऐप होगा पक्का, ये सब भी ऐप्स होते हैं कुछ, है ना. नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखना पड़ता है. तो हो सकता है 10 में से 5 नोटिफिकेशंस कुछ रिलेवेंट होता है टू सी ए प्रोफेशन. सो वो देख लेना. बस उतना से आपका काम हो जाएगा. विश यू ऑल द बेस्ट. और अगर केपीएमजी है तो रौनक भाई है. नहीं सर, एक्चुअली नहीं, अगर मैं यही बोलूंगा आप एक्चुअली Khushbu, can you please type it in the chat? I think आपका इंटरनेट थोड़ा सा सही नहीं चल एक्चुअली ठीक है. I think I'm any other questions that any one of you has, we'll take that. Otherwise we'll. हाँ शुभम, बताओ, तुम्हारा एक क्वेश्चन बचा है, बताओ. तो मुझे बस एक चीज और पूछनी थी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क लाइफ इन मिड साइज फर्म एंड बिग फोर फर्म? चलो बढ़िया. तो टॉकिंग अबाउट बिग फोर ना नाम बदनाम है बहुत ज्यादा ही. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब है. सो समवॉट इट इज यस. जब आपके ड्यू डेट्स आती हैं, डेडलाइंस आती है, और ऑडिट का एक्चुअली एक टिपिकल प्रॉब्लम है कि वी हैव द स्टैट्यूटरी डेडलाइंस. अप्रैल में ऑडिट करना है, मई में आपको साइन करना है. ओके. सो और LODR के आपके जो LR है वो तो आपको करना ही करना है. 15 डेज बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. बट रेस्ट आई फील, मतलब मैंने बहुत टाइम अपना ऐसा है कि मैं 6 o'clock को अपना लैपटॉप बंद कर चुका हूँ. तो ऐसा इतना सिर्फ नाम बदनाम थोड़ा ज्यादा है. Right. Okay. Anshul, your answer to this, how is it work-life balance at your firm? Anshul, you're on mute. ऐसा है कि वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है, होता नहीं है. अब जो रौनक भाई ने बोल रहे थे कि अप्रैल में ऑडिट्स होते हैं, मई में वो क्लोजर्स होता है, तो लिस्टेड कंपनीज का यही होता है इंडिया में. एंड इवन फॉर सम गुड कंपनीज, दोज हू मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो लोग चाहते हैं कि क्विकली ऑडिट्स करें. सो हो सकता है कि मे बी इन बिग फोर्स there may be only listed entities, or maybe you are engaged only in 2 or 3 listed entities, जिसमें आप
मई में आपको डेडलाइंस ज़्यादा हो, और फर्स्ट क्वार्टर जुलाई अगस्त में फिर से आ जाता है, फिर अक्टूबर नवंबर में आ जाता है, और दिसंबर जनवरी फरवरी में फिर से थर्ड क्वार्टर का एलआर आ जाता है ना, और फिर मार्च में ही प्री ऑडिट स्टार्ट हो जाता है। तो देखो लाइफ जिंदगी भर कुछ ना कुछ चलते रहता है बिग फोर में भी। और अगर आप मीडियोकर फॉर्म्स में भी आते हो, और अगर आप मे बी यू आर इन अ मिक्स्ड काइंड ऑफ प्रोफाइल, तब तो लाइफ और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। मेरी भी लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रही है डे बाय डे, बट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग स्मार्टली। वो मैं आपको बताऊंगा, मे नॉट बी अ गुड फोरम टू स्पीक नाउ कि कैसे चीज़ों को स्मार्टली करना चाहिए, एंड कीपिंग द क्वालिटी ऑल्सो इन माइंड, है ना, ऑब्वियसली। सो मीडियोकर फॉर्म में इफ़ यू आर इन अ मिक्स काइंड ऑफ प्रोफाइल, तो क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपको अप्रैल मई में लिस्टेड कंपनी का ऑडिट भी करना है, टीडीएस रिटर्न भी फाइल करवाना है क्लाइंट का, फॉर्म 61A भी फाइल करवाना है, उसका भी ड्यू डेट 30 मई होता है, जीएसटी रिटर्न्स भी फाइल करवाना है 22 को, है ना, और टीडीएस का पेमेंट भी करवाना है इफ़ यू आर एडवाइजरी टू सम ऑफ द स्टार्टअप क्लाइंट्स। ये अप्रैल मई का शेड्यूल मैंने बता दिया। अब जून में DPT3 भी फाइल करवाना है, और जीएसटी टीडीएस एवरी मंथ है, एवरी क्वार्टर है, तो मैं आई डोंट वांट टू रिपीट। और जून में और क्या होता है, से सपोज आप लिस्टेड कंपनीज से भी 33 का LODR 33 का रिजल्ट्स तो फाइनल कर देते हैं, बट जो एनुअल रिपोर्ट्स होता है या जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स होती है, मेन ऑडिट रिपोर्ट्स एंड ऑल, दे गेट फाइनलाइज इन द मंथ ऑफ जून। सो आप जून भर उसी में लग जाते हो, है ना। जून में हो सकता है आप अपनी अप्रैल मई में जो क्लाइंट्स होती है, क्लाइंट्स जो और क्लाइंट्स होती है उसको आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो आपको जून में वो भी थोड़ा सा टेक ओवर करना है। फिर जुलाई में क्या होता है कि इंडिविजुअल टैक्सेशन का ड्यू डेट आ जाता है ना, बीच बीच में कुछ फॉर्म 15 सीवीज भी आ जाती है, ये तो 12 मंथ्स ही चलते रहता है। और आपका फर्स्ट क्वार्टर का भी ऑडिट स्टार्ट हो जाता है 30 जून वाली। अब अगस्त में क्या होता है, CBDT अगर हम लोग का ड्यू डेट एक्सटेंड कर देता है, तो फिर इंडिविजुअल टैक्सेशन फाइलिंग उस टाइम में भी करना पड़ता है। जुलाई में भी करते रहेंगे और अगस्त में भी करते रहेंगे, है ना। 31 जुलाई को भी अगर ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाती है, तो कुछ ऐसा क्लाइंट्स जरूर रहेंगे आपके हाथ में जो अगस्त में ही करने आएंगे आपके साथ में। उन लोगों को पता था कि ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है 31 जुलाई को रात को, हो सकता है 11 बजे पता होगा, लेकिन फिर भी उन लोग को पता था इन एडवांस। ऐसा होता है कि निर्मला सीतारमण शायद उन लोग को फोन करके बोली होगी कि यहाँ ड्यू डेट एक्सटेंड होगा बाबा, अभी मत जाओ, है ना, अगस्त में ही जाना। तो अगस्त में भी कुछ ना कुछ ऐसा क्लाइंट्स आ ही जाएंगे। फिर अगस्त में हम लोग की ऑडिट्स भी स्टार्ट हो जाती है। सारी कंपनी को सितंबर में AGM करना है, तो बोर्ड मीटिंग करना रहता है अगस्त में, और UDN का भी चक्कर रहता है। सो अगस्त एंड सितंबर इज अ वेरी बिग प्रेशर मंथ। फिर आपकी अक्टूबर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए फॉर्म 10 भी, है ना, फॉर्म 10BB ये सब भी करना पड़ता है, ITR 7 भी करना पड़ता है। अब जब नवंबर में आ जाओगे तो आपको टैक्स ऑडिट्स का प्रेशर आ जाता है। और दिसंबर में अब आते हो तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट डेडलाइन थिंग्स। आई फॉरगॉट टू मेंशन सेकंड क्वार्टर ऑडिट इन अक्टूबर एंड नवंबर। अब दिसंबर में जब आ जाते हो तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के असाइनमेंट्स भी करना रहता है, एंड मे बी ROC फाइलिंग्स का भी आपको प्रेशर रहता होगा, AOC 4 MGT 7 का। ठीक है, अगर हो सकता है आप नहीं भी कर रहे हो, बट यू आर द ओनर ऑफ फॉर द क्लाइंट, सो यू शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हुआ कि नहीं हुआ, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम द पीपल इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज टास्क आज का दिन में। बिकॉज एक तो पहले उनको समझाओ, फिर उनका रिव्यू करो, फिर कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट। Indian clients do not tend to give data in a proper manner, then do not tend to give data in a proper within the stipulated time, तो उनसे बात करो, है ना। सो दैट ऑल्सो टेक्स अ गुड टाइम, गुड एफर्ट्स, बिकॉज चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब क्लाइंट्स को आप फोन करके ऐसा तो बोल नहीं सकते कि आप मेरे को डेटा भेज दीजिए, थोड़ा सा PR भी मेंटेन करना पड़ता है क्लाइंट्स के साथ में। हेलो, कैसे हैं, क्या चल रहा है आपका कंपनी में। सो ये सब चीज़ों में टाइम लग जाती है। अब जनवरी जब आते हो तो जनवरी में फिर से टैक्स ऑडिट्स का ड्यू डेट एक्सटेंड हो गया, तो टैक्स ऑडिट्स वहाँ पे भी करते रहेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग करते रहेंगे, TDS रिटर्न, ये सब चीज़ तो है ही। फिर फरवरी में अगेन थर्ड क्वार्टर का ऑडिट्स, मार्च में अगेन 148 का नोटिसेस, 143(2) का नोटिसेस, में भी कुछ अगर सर्च सीजर वाले भी 1-2 क्लाइंट आ जाते हैं आपके पास में, तो उसका भी आप कंप्लायंसेस करते रहो। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गो ऑन। सो नाउ आई थिंक
qualified chartered accountants maybe only 3 or 4 I think in this forum if I'm not wrong. So आप लोग ये सोच के चलना होगा कि आप बिग फोर्स में जाओ, चाहे आप मीडियोकर फर्म्स में जाओ, चाहे आप कोई भी वर्टिकल में जाओ, चाहे आप अपना बिजनेस ही करो, चाहे आप अपना फ्रीलांसिंग ही करो, चाहे आप म्यूजिशियन ही बनो, चाहे आप सीए मॉन्क उमंग भाई शिवम भाई के जैसे अगर कंपटीटर फॉर्म भी ओपन करो, तो आपको थ्रू आउट 12 मंथ्स 365 डेज 24/7 काम तो करना ही पड़ेगा। बैक ऑफ द माइंड आप फिजिकली हो सकता है आप गोवा बीच में होंगे या मंडारमनी में होंगे, बट अब जब तक आपके पास में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, और अभी तो मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम सच अ स्मार्ट, मतलब लोग व्हाट्सएप ड्रॉप कर देते हैं, है ना, देन फिर बोल देते हैं कि रात को 11 बजे व्हाट्सएप ड्रॉप करते हैं, फिर सुबह 9 बजे फ़ोन करते हैं कि सर आपने वो देखा क्या, बॉस आपने वो देखा क्या। तो थिंग्स आर ऑलवेज, आई थिंक अब वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है नहीं होता है आप कुछ समझ लो। सो ऑन टॉकिंग ऑन वर्क लाइफ बैलेंस, यू हैव टू मेक इट वर्क लाइफ बैलेंस। सो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा वर्क करो, दैट विल कीप योर माइंड डाइवर्टेड, कीप योर माइंड फ्रेश। थोड़ा सा म्यूजिक सुनो, और मे बी वंस इन अ मंथ एक मूवी देखो। ऐसा नहीं है कि मैंने जब 2-3 दिन पहले एक सेशन ज्वाइन किया था, तो वो था, एक तो टैगलाइन था, नेटफ्लिक्स धोखा है, अमेजन प्राइम धोखा है, नेटफ्लिक्सिंग करो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि दिन भर आप नेटफ्लिक्स में लगे रहो, थोड़ा सा अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। सो योगा मेडिटेशन इज अ गुड पार्ट ऑफ द लाइफ। So ज्यादा नहीं बोलता हूँ, it's already beyond 6. Great, no problem. For pending questions, right, you can just send it to us. We will try to source the answer from both of these mentors. I think since it's a working day, we won't take much of their time, right? One final time, a big thanks to Anshul and Ronak for joining us. And yes, so one question, एक answer I think बचा है. Send to you have asked. You have 2 years of post qualification experience in direct tax and want to start your career in statutory audit. You can look out for Career Accelerator program that we run. It's a completely mentor-driven program where we help you switch domains. Right, so it will be a 1 month technical plus a soft skill training that you get from mentor. Right. So once again, let's thank both of these mentors, Ronak and Anshul, and let's call it a day. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye bye. Thank you, sir. Yes. Bye. So I am always approachable. So if anyone has any queries or if anything, Yes. if anyone has to do something criticism, जो मैंने आज यहाँ पे हो सकता है फोरम में कुछ गलती भी बोला होगा, so I have shared my number and email address. So you can call me anytime. If I am not able to respond to you at that very time, I'll give you a response maybe within the next 2 to 3 hours. Great. Thanks a lot. Bye bye. And ICI is doing a lot for you students, for we members. So आप लोग थोड़ा सा ICI का वेबसाइट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। एट द सेम टाइम cmonk.com ऑल्सो, बिकॉज शिवम भाई, उमंग भाई ICI जो करती है आप लोगों को बताती है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए ICI की तरफ में, बिकॉज ICI इज आवर टेम्पल, है ना। तो अगर आप टेम्पल में थोड़ा सा दर्शन करते रहोगे, उसका वेबसाइट में दर्शन करते रहोगे, तो वो भी आपको बुलाते रहेगा, नहीं तो फिर एग्जाम में बुलाते रहेगा, है ना, बार बार। Great. Thanks a lot. See you. Bye bye. बाय बाय, नमस्ते।